जी, होगा जी। दो लोग और हैं। Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mohsen Ali. I am serving as a company secretary in Tariq Glass Industries Limited, and I welcome all of the respected participants uh, to this corporate briefing session, which will mainly cover the financial and operational performance for the year ended June 30, 2025. Uh, to start with, we will first recite the Holy Quran. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيम जज़ाकल्लाह। मैं सबसे पहले आपके सामने हस्बैंड नहीं है। अनस साहब, आप अपना प्लीज माइक ऑफ कर दें। सबसे पहले मैं आपके सामने पैनल का इंट्रोडक्शन आपके सामने रख देता हूं जी कि आज के सेशन को हेड कर रहे हैं कंपनी के असिस्टेंट मैनेजिंग डायरेक्टर और सीएफओ जनाब वकारुल्लाह साहब, जो मेरे बिल्कुल लेफ्ट साइड पे तशरीफ फरमा है। उनके साथ कंपनी के आईटी के हेड जनाब शाहिद अली साहब हैं, और शाहिद साहब के साथ कंपनी के जनरल मैनेजर फाइनेंस जनाब मोहम्मद काशिफ सदीक साहब बैठे हैं। और मेरे राइट साइड पे कंपनी के मैनेजर अकाउंट्स जनाब इंजमाम साहब तशरीफ रखते हैं। और आज का जो कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन है फॉर द ईयर 2025, ये इंजमाम साहब ही ये सारी प्रेजेंटेशन आपके गोश गुजार करते हैं। तो मैं सबसे पहले इंजमाम साहब को इनवाइट करता हूं कि देखिए वो आज की प्रेजेंटेशन आपके सामने पेश करें। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of our esteemed participants. First of all, I would like to welcome all of you in today's corporate briefing session. Our today's presentation consists of four major portions. The first portion is about the profile of the company. In the second one, we will discuss the financial performance of the company. Then we will have a look at the strategic direction and future prospects. And in the end, there will be a question answer session. So let's start with the overview of our company, Tariq Glass Industries Limited. Tariq Glass Industries Limited was incorporated in 1978 and got listed on Pakistan Stock Exchange in 1984. Currently, the company has installed production capacity of 1,390 tons per day with 5 number of plants. PACRA, which is a well-reputed credit rating agency, has assigned the company with the long-term rating of A+ and short-term rating of A1. The company's human resource include 989 permanent staff members, and company has a strong market capitalization of 43.24 billion as at 30th June 2025. Tariq Glass is a well-known glass manufacturer of tableware, container, and float glass products, selling its product all across Pakistan and across the globe under the well-reputed brands like Toynasik, Omrok, and Nova. This was a brief introduction of the company. Then we have some information about the group structure. In recent years, Tariq Glass has expanded through long-term investments and acquisitions. Tariq Glass has an associate relationship with Triple M Holding Private Limited, which is the holding company of Balochistan Glass Limited. Tariq Glass owns 50% joint control in Triple M Holding Private Limited. Similarly, Tariq Glass, in collaboration with Lucky Core Industries Limited, form a joint venture, Lucky TG Private Limited, and Tariq Glass owns 49% equity stake in this joint venture. This was a brief information about the group structure. And now we have to discuss some key developments of the year 2025. During the year, the company continued its policy to enhance reliance on solar power generation and added 1 megawatt more to its solar power generation. It can benefit the company to reduce the energy costs as well as to lower the carbon emissions. The company faced some subdued performance from its associated companies, especially Triple M Holding Private Limited, due to the losses incurred during the year due to the challenges being faced by Balochistan Glass Limited. The project Lucky TG Private Limited is currently on hold due to the market constraints, and the project is expected to be resumed soon
as the market conditions becomes conducive. Another key development during the year is financial restructuring of Balochistan Glass Limited, where the long-term loans payable by BGL to Triple M Holding Private Limited has been converted into equity shares. This has increased the equity stake of Triple M Holding in BGL. So, as a result, the effective shareholding of Tariq Glass has increased from 42.17% to 46.79% in BGL. Now we have an overview of the production process. It is pertinent to mention that tableware, float glass, and container glass production processes are almost same, but for the sake of convenience and time saving, we have elaborated float glass production process. The glass production process initiates with the mixing of raw materials in a batch mixer, and these mixed materials are called batch mix. The batch mix is then melted into a large furnace at high temperatures, approximately around at 15 degrees Celsius. Then the molten glass is spread along the tin bath where it takes the form of a glass ribbon, and this process is known as forming. After forming, there is a process of annealing where the glass ribbon is cooled down slowly so that the internal stresses in the glass are relieved and glass uniformity is maintained. After annealing, the glass ribbon is cut to sheets of required sizes and shapes, and then these are packed safely in wooden pallets. Next, we have to discuss the financial information for the financial year 2025 in comparison with the financial year of 2024. During the year, the company's revenue increased by 13%, which is a significant increase. The gross profit of the company increased from 7.8 billion to 10.4 billion with 33% increase. The operating profit and profit before tax increased by 38% and 18% respectively. The company earned profit after tax of 4.8 billion during the year with an increase of 9%. The EPS of the company also gained 9% and stood at 27.7 rupees per share. The long-term investments decreased by 25% due to the losses of associated companies. The retained earnings of the company increased to 17.8 billion with a 27% increase. The long-term loans depict a massive decrease of 61%, and the company completely relieved its short-term borrowing during the year. This analysis of financial information reveals strong financial performance of the company and indicates that the company has used its impressive profitability to reduce its reliance on long-term and short-term finances both. Now we have some important key performance indicators of the company. The first one is current ratio. Current ratio represents a company's ability to meet its short-term commitments with its short-term resources. The increasing trajectory of current ratio indicates that the company has no issue in meeting its short-term commitments. The next one is debt to equity ratio. Debt to equity ratio measures a company's financial gearing and its reliance on long-term debts. The consistent decrease in debt to equity ratio indicates company's long-term financial stability. The next key KPI is GP margin ratio. GP margin indicates a company's operational performance from the refinement of its business processes. The increasing trend of GP margin also reflects that the company is improving its business processes continuously. The next KPI is price to earning ratio. Price to earning ratio evaluates a company's share price in comparison with the earnings produced by the share. The increasing PE ratio also indicates investors' strong confidence in the company's performance. Now we have some important measures of efficiencies and growth. First indicator is sales. Sales is one of the most important growth factor for any company. The consistent increase in sales volumes indicates company's ability to expand and maintain its operations in future. The next is EBITDA, earnings before interest, tax, depreciation, and amortization. EBITDA represents the company's core operational performance by excluding the factors that are non-operational. The increasing EBITDA also represents company's strong growth potential. The next growth factor is dividend per share. The declining trend of dividend per share indicates company's policy to focus on the long-term growth and conserve capital for future growth projects. The next is debtor turnover days.
The increasing trend of debtor nowadays indicates companies relax policies to its customers in order to maintain the sale volumes. Now we have some key contributions of the company towards the national economy and for social welfare. The company contributed more than rupees 9.5 billion in national economy in the form of income taxes, sale taxes, duties, and other government taxes. More than rupees 28 million set aside for charitable donations. The company extended its solar power generation to 3.5 megawatt, which has been successfully completed during the year. More than 4,000 individuals has been provided with job opportunities, including permanent, daily wage, and contractual staff. The company earned around $8 million in the form of export sales and played its role in strengthening of the foreign exchange reserves. Now we have some discussion about the value propositions and strategic direction of the company. The healthy cash flows, sustainable revenue streams, and extensive geographical reach demonstrates high potential of growth of the company. The company's strategic direction integrates both inorganic and organic growth. Inorganic growth is driven by the acquisitions and takeovers, while the organic growth focuses on the persistent R&D, adoption of digital transformation, and refinement of efficiencies. Competitive advantage is an important factor of our strategic direction, and it is mainly based upon our advanced infrastructure, our talented human resource, our scalability of operations, and the ability to customize and provide value-added products to our customers. Now we have some risks and uncertainties that we may face in the future and the opportunities available that can be explored. The first risk mentioned here is the political instability, which is creating uncertainty about the continuity of regulatory and economic policies, and that undermines the investors' confidence and industrial expansions. Another key concern that the corporate sector, including our company, is concerned about is the taxation system. The exorbitant tax rates are consuming nearly half of the profits, and the inefficiencies of tax systems are disrupting the business activity. So therefore, we urge the authorities to introduce immediate reforms in order to ensure the long-term viability of the businesses, especially the corporate entities. Another risk that we are facing nowadays is the devastation created by the recent floods. The floods has destroyed large amounts of infrastructure along with the thousands of acres of agriculture produce that is likely to impact the consumer demand. However, we are optimistic that our widespread geographical reach can help us to mitigate this risk. Now, we have some other opportunities that we can explore. The first and most important opportunity is economic growth potential of Pakistan. Pakistan has a large population that is increasing rapidly and that requires large housing and commercial buildings. The float glass industry is well positioned to benefit from this opportunity. Another opportunity that is available in nowadays is the adoption of sustainability and green practices. The ESG regulations are changing the demand dynamics, and the clients, especially the foreign customers, are preferring the socially responsible suppliers. Therefore, early movers can benefit from this opportunity, and therefore the company has aligned its strategies to benefit from this opportunity. The next opportunity mentioned here is the economic stability. The financial year of 2025 has shown some signs of economic stability reflected by the reduced interest rates, easing of inflation, and stable exchange rates. If this economic stability continues in the future, it can be turned into the opportunity to support the higher growth rate and expansion of business activity in the country. That's all from today's presentation. I hope the session was informative. Thank you. Now we will have a question answer session. Thank you very much, Inzamam. Very nice presentation. Now I would like to request the participant to raise your hands if they want to ask the verbal questions.
so that we can answer turn by turn. So first of all, I would like Mr. Suhail Tai to ask the question. Ji, Assalamualaikum. Sir, before I begin my questions, congratulations. I believe this is the highest sales, highest profit, highest margins in the history of the company. So बहुत-बहुत Thank you very मुबारक to the much. entire team. Sir, Shukriya. first coming to your margins, we saw a jump in margins from up to about 31%, and the previous 4-year average was about 24%. Are these margins representative going forward? इंशाल्लाह जी. अच्छा. Sir, total demand क्या है float glass और tableware की in Pakistan? सब इसका टोटल डिमांड का अभी तक कोई एस्टिमेट नहीं है यहाँ पे. मतलब लास्ट ईयर आपने हमें एस्टिमेट दिया था फ्लोट ग्लास का अबाउट 22,000 पर मंथ और टेबल वेयर का अराउंड 6,000 पर मंथ. तो अंदाजन जी. इतना ही है कि आगे पीछे बढ़ गया है या कम? अंदाजन इतना ही है. अच्छा. फ्लोट ग्लास का डिपेंड करता है टैक्सेशन के ऊपर, जो हाउसिंग सेक्टर के ऊपर टैक्सेशन के मेजर्स हैं. लैंड के ऊपर जो कैपिटल टैक्सेस हैं उसकी वजह से उसकी ग्रोथ रुकी हुई है. अगर वो खुल जाए और रैशनलाइज हो जाए तो इंशाल्लाह ये इससे बहुत बेहतर हो जाएंगे मार्जिन्स. क्या आप सर किस तरह कंसीडर कर लें कि 350,000 से लेकर 400,000 तक जो है ना ये इसकी डिमांड, अगर ओवरऑल मार्केट को करना चाहते हैं तो? ये फ्लोट और टेबल तो कंबाइन किया हुआ है आपने? जी बिल्कुल. अच्छा. अच्छा. और अभी हमारे 2 फर्नेसेस बंद है 2022 से. आई थिंक फ्लोट ग्लास की तो रिफर्बिश कंप्लीट है, आप बस वेट कर रहे हैं फॉर डिमांड. आपकी क्या बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस है, कब रीस्टार्ट करने का प्लान है? जैसे ही कोई डिमांड इंक्रीज होती है, आप मार्केट में बैठे हैं, आपको ज्यादा बेहतर पता है. हम तो बिल्कुल तैयार बैठे हुए. अच्छा. कल कहेंगे तो कल स्टार्ट हो जाती है, आज हो जाएगी, कल की बजाय. नहीं, वो तो आई नो इट्स फंक्शन ऑफ डिमांड, बट आपके एस्टिमेट्स में क्या, आपको क्या लगता है ये पूरा साल निकल जाएगा, स्टार्ट नेक्स्ट ईयर के लॉन्गर देन दैट? सर एक्चुअली ये होता है कि सबसे पहले जो आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है ना, जो आपकी इसमें रियल एस्टेट सेक्टर के लिए हैं, वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं. सबसे पहले सीमेंट की, स्टील की डिमांड रेज होती है और उसी कंपैरिजन के अंदर जाके क्लोजिंग जब अपने घर को कर रहे होते हैं तो हमारी डिमांड भी उसी तरीके से इंक्रीज कर रही होती है. और एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि अगर कोई गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज करती है तो डेफिनेटली इंशाल्लाह कोई बेहतरी आने का चांस है. ओके. सर, हमारे एक्सपोर्ट्स आर डाउन ईयर ऑन ईयर, उसमें मेनली टेबलवेयर की वजह से. इज दिस बिकॉज ऑफ अ शिफ्ट टू लोकल जहां मार्जिन्स हायर है, कि एक्सपोर्ट मार्केट इटसेल्फ वाज कंपेटिटिव? एक्सपोर्ट के फ्रेट्स, सी फ्रेट्स इतने बढ़ गए हैं जी कि बहुत अनकम्पिटिटिव हो गए हम. और सर फाइनली आपका एक ओपन ग्लास का प्लांट था, वो आई थिंक कोविड से बंद पड़ा हुआ है, उसको कोई रीस्टार्ट करने का प्लान? उस पे बातचीत चल रही है जी. बेसिकली वो बहुत मुश्किल एक चीज है जी. तो वो हैं, हम फॉरेन प्लेयर्स के साथ इन टच हैं. किसी के साथ उनके कोलैबोरेशन करेंगे या उनसे कोई टेक्नोलॉजी बाय करेंगे. जैसे कुछ होता है तो इंशाल्लाह वो स्टार्ट हो जाएगा जी. ओके, चलिए सर, थैंक यू सो मच. वेलकम. The next I request Sarwat Masood Saab. Please ask your question. जी अस्सलाम वालेकुम सर. मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, आज जी सर, तो सबसे पहले तो आपसे मैं ज़रा कॉस्ट साइड पे कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ. जो आप कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर अपने आइटम्स लिस्ट करते हैं, उसका आप बता सकते हैं कि वेरिएबल नेचर के कौन से हैं और फिक्स्ड नेचर के कौन से हैं? देखिए उसके अंदर ये है कि जो चीजें डायरेक्टली आपकी प्रोडक्शन से रिलेट करती हैं वो सारी वेरिएबल होती हैं. फॉर एग्जांपल आपके रॉ मटेरियल्स हो गए, उसके बाद फ्यूल की कॉस्ट होगी और स्टोर्स की, क्योंकि जितनी प्रोडक्शन करेंगे उतनी स्टोर्स और डिफरेंट चीजें जो हैं वो आपकी यूज हो रही होंगी. आपका लेबर कंपोनेंट जो है वो उसके अंदर वो वेरिएबल होता है. जो स्टैटिक कंपोनेंट है वो आप किसी हद तक ये समझ सकते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें हैं वो होगी, या फिर जो आपकी डेप्रिसिएशन है वो चाहे आप प्रोडक्शन करें या ना करें वो स्टैटिक रहती हैं. जी ठीक है सर. सर तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि सबसे ज़्यादा आप लोगों का मेजर कॉस्ट जो है वो फ्यूल होती है. जी
जी, अब फ्यूल की जो आप लोगों ने माशाल्लाह ओवर टाइम हमने देखा है 20%, 25% की रेंज से 30% पे ले आए थे। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी कि आप लोगों ने बड़ा एक स्वीट स्पॉट ढूंढ लिया हुआ था, फर्नेस ऑयल, गैस और एलएनजी का मिक्स। अब फर्नेस ऑयल के ऊपर ड्यूटी लग गई है, डीजल महंगा बहुत है, तो अब आप लोगों का ये फर्स्ट क्वार्टर होगा जिसमें आप लोग न्यू मिक्स के साथ जाएंगे, तो उस पर थोड़ी सी जरा गाइडेंस दे दीजिए। सर उसके ऊपर यही है कि हम लोग और अब जो पाकिस्तान की कंडीशन है उसमें डेली बेसिस पे बैठ के या वीकली बेसिस पे बैठ के हम एनालाइज कर रहे होते हैं कि हमारे लिए सबसे सूटेबल ऑप्शन कौन सी है, वेदर दैट इज गैस, फर्नेस ऑयल, डीजल, सोलर। तो ये सारी चीजें बैकअप के अंदर चल रही होती हैं। फिर हम लोग जो इसको डिफरेंट वे में असेस कर रहे होते हैं कि अगर किन दो का मिक्स हमारे लिए ज्यादा सूटेबल होगा। तो वो कोई स्टैटिक नहीं है, कभी हम लोग फर्नेस ऑयल पे मूव कर रहे होते हैं, कभी हम लोग बाजुकात हमें इसकी इस टेन्योर के अंदर हमें डीजल पे भी मूव करना पड़ा, फिर गैस पे मूव करना पड़ा है। तो हम लोग ये सारी चीजें ऑन डेली बेसिस इसको असेस कर रहे होते हैं। जी जी सर, डेफिनेटली माशाल्लाह आप लोगों की बड़ी एफिशिएंट मैनेजमेंट टीम है, इंजीनियर्स और सारे आप बड़े अच्छे हैं। तो मैं समझना ही चाह रहा हूँ कि अगर आप हमें कोई रिक्वायरमेंट पर टन अगर बता दें कि कितने यानी मेगावाट्स ऑफ एनर्जी या एमएमसीएफ गैस का चाहिए मिला के सारा, एक टन फर्नेस फ्लोट ग्लास और एक टन टेबलवेयर के लिए। सर हमारा क्योंकि कनेक्शन कंबाइन चल रहा है तो हमारा तकरीबन हम लोगों ने जो लिया हुआ है वो हमारा रफली कोई 500 जो है ना एमसीएफ का लोड है, जो हमारा उसका गैस का लोड है जो हम लोग चला रहे हैं, और इसी तरीके से तकरीबन 10 मेगावाट का लोड है जो हमारा पावर सेक्टर के अंदर है। सर ये 500 एमसीएफ पर आवर के हिसाब से आपने मुझे बताया, पावर जी जी यानी एक घंटे का आपको 500 एमएमसीएफ चाहिए। जी। MMCF नहीं, MCF, एमसीएफ। मिलियन क्यूबिक एमसीएफ फीट सॉरी। पर आवर। जी जी, और इसको आप पूरा जो है, क्योंकि आप लाहौर में बैठे हैं तो आप लोगों को मिल रही होगी एलएनजी वो 3000 रुपये पर एमएमबीटीयू। जी जी, और सर जो 10 मेगावाट आपने इलेक्ट्रिसिटी का कहा है, 3.5 मेगावाट तो आप लोगों का सोलर है, वो तकरीबन हम 20 से 30% एफिशिएंसी पे चला ले। बाकी मेरा ख्याल है एक वेस्ट हीट रिकवरी भी आपने डाला था, वो 1 मेगावाट ले लें, तो बाकी का आप लोग ग्रिड से ले रहे हैं, इस तरह से ही है। देखिए, वेस्ट हीट रिकवरी अंडर पाइपलाइन है, अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। और जी। सोलर से बिल्कुल हम लोग यही कर रहे हैं, 3.5 मेगावाट का सोलर किया हुआ है। उसके बाद हम लोग अब रिलाय वापडा पे सेकेंडली कर रहे हैं। पहले फर्स्ट हम लोग अपनी ऑन जनरेशन के ऊपर मूव कर रहे हैं, क्योंकि वापडा के जो शटडाउन्स आते हैं उससे हमारी प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा वो डिस्टर्ब होती है। तो इसलिए हम लोग अपनी पावर जनरेशन फर्स्टली गैस के ऊपर, सेकेंडली उसके ऊपर एचएफओ के ऊपर या डीजल के ऊपर, ये हम लोग प्लान आउट करके चल रहे होते हैं। सर मैं एक चीज से कंफ्यूज हो रहा हूँ, आप जो आप एमसीएफ में गैस ले रहे हैं उसी से आप ये 10 मेगावाट बिजली बनाएंगे, या इसके यानी 500 एमसीएफ तो चाहिए, उसके अलावा दैट 10 इज मेगावाट सेपरेट। बिजली चाहिए? दैट इज सेपरेट, दैट इज अच्छा, सेपरेट। ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, ठीक है सर। और सर एक चीज आप मुझे अगर वो पर टन आप रिक्वायरमेंट फ्लोट ग्लास और टेबल वेयर की बता देते। किसकी गैस की रिक्वायरमेंट पूछ रहे हैं? जी जी जी। वो मुश्किल है, जो कोई टेक्निकल बंदे बैठेंगे वही बता सकते कोई हैं। आपको कर देंगे। जी एक्चुअली इस वजह से ये है ना कि जब आपकी प्रोडक्ट चेंज होता है, थिकनेस चेंज होती है, हाँ जी। तो वो एक ही टनेज के ऊपर रख के आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे होते। 5 mm के ऊपर आपकी एक डिफरेंट पुल आ रही होती है, 12 mm के ऊपर आपकी एक डिफरेंट पुल होती है। आप 3 mm का ग्लास बना रहे होंगे, आपको स्पीड कम करना पड़ती है, आपकी पुल गिर जाती है। तो वो जी। कुछ अगर आपको एक फिगर बोल देंगे, वो टोटली जो है ना वो मैच नहीं कर रही होगी चीजों के साथ। तो जैसे जैसे ठीक है थिकनेस सर। बढ़ती है वैसे वैसे फ्लेम भी बढ़ जाता है, तो फ्लेम ही जी उसको पावर दे रहा होता है फ्लो करने में ग्लास को, फ्रॉम द फर्नेस टू द मशीन्स। ठीक है सर। सर ये तो फ्यूल एंड पावर पे आपने बड़ा अच्छा समझा दिया। अगर आप बस हमें रॉ मटेरियल और पैकिंग मटेरियल के बारे में थोड़ी गाइडेंस दे दें। रॉ मटेरियल जो आप लोगों का वो तो सोडा ऐश है, उसकी प्राइसेस मैंने देखा है ज्यादा स्टेबल ही रहती हैं, वो इतना उसमें Silica मसला sand are raw नहीं है। material main to manufacture the glass. Soda ash is a catalyst that is हाँ जी। used to manufacture or for the production of glass.
तो उस पे कोई इतना प्रेशर प्राइस का नहीं है। पैकिंग मटेरियल के बढ़ने के चांस है, या बता सकते हैं कौन से रॉ मटेरियल्स और पैकिंग मटेरियल पे इन्फ्लेशन आ रही है? जितना भी रॉ मटेरियल है बेसिक, अगर डीजल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो साथ ही उसकी प्राइसेस हमें बढ़ जाती हैं जी। जो डेली बेसिस एवरी फोर्टनाइटली बेसिस के ऊपर प्राइसेस बढ़ती हैं फ्यूल की, तो वो सारा वो प्राइसेस स्ट्रक्चर चेंज हो रहा होता है जी। अदरवाइज वो कांस्टेंट रहती हैं, माइंस के ऊपर कोई इतनी ज्यादा नहीं हो उनका फर्क पड़ रहा होता। जी ठीक है सर, बस लास्ट मेरा क्वेश्चन जरा सेल साइड पे, अगर आप हमें बता दें टेबल वेयर का पर टन आपको क्या रेवेन्यू मिल रहा है और फ्लोट ग्लास का क्या मिल रहा है? वो भी आर्टिकल टू आर्टिकल डिपेंड कर रहा होता है। फ्लोट ग्लास में 12 mm की और प्राइस है जी, 3 mm की और पर टन प्राइस। जी जनरलाइज करना बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, चलो, थैंक यू। वेलकम। जी, अहमल साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप अपना क्वेश्चन रेज कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम, फरहान फ्रॉम अलवी बैसेट। मेरे दो क्वेश्चंस हैं। एक तो न्यूज़ में आर्टिकल्स में भी आया था कि आप जो है एक थर्ड पार्टी से गैस ले रहे हैं यूजीडीसीएल से, तो जी इस पे थोड़ी गाइडेंस दे दें कि कितनी गैस जो है आपको एलोकेट हुई हुई है इन एमएमसीएफडी पर डे, और उसकी क्या प्राइसिंग है, अगर इस पे आप थोड़ी गाइडेंस दे दें हमें। दूसरा, इसके अंदर ये भी बता दें कि अभी रिसेंटली अखबार में भी आया था कि पहले यूजीडीसीएल को अराउंड 15 एमएमसीएफडी पाइपलाइन कैपेसिटी एसएनजीपी ने एलोकेट की हुई थी, वो बढ़ के 50 एमएमसीएफडी हो गई है। तो क्या इसकी वजह से आपको भी कोई एलोकेशन बढ़ी है यूजीडीसीएल की तरफ से? और सेकेंडली मेरा क्वेश्चन है ऑन डिविडेंड पे आउट रेशियो के ओवर द इयर्स हमने वी हैव लुक्ड के आपकी जो कैपेक्स के अंदर रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि जब 5-6 साल या 7 साल बाद आपकी फर्नेस की लाइफ ख़त्म होती है तो आपको एक बहुत बड़ा कैपेक्स करना पड़ता है। बट गिवन द फैक्ट कि आपकी 2 फर्नेसेस ऑलरेडी रेडी हैं टू कम इनटू एक रेडी है ऑपरेशंस। एक रेडी, हाँ चलिए, वो ग्लास फ्लोट का वाला आपका जो है वो रेडी है, अभी तक आपने फायर नहीं बिल्कुल किया है, रेडी। और अभी जो ऑलरेडी चल रहा है आपका फ्लोट वाला ग्लास का फर्नेस, वो अभी उसको शायद 2 या 2.5 साल हुए हैं चलते हुए। तो जी वी सी के नेक्स्ट 5-6 ईयर्स तक कोई आपका बड़ा कैपेक्स नहीं है, और आपकी माशाल्लाह से बिल्कुल। बैलेंस शीट भी हम देख रहे थे कि ऑलमोस्ट डी लेवर हो गई है, मतलब नेट डेट देखे तो ऑलमोस्ट जीरो है। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो पे कोई गाइडेंस दें कि ये गोइंग फॉरवर्ड बढ़ सकता है, क्योंकि एज सच हमें कोई आगे बड़े कैपेक्स नजर नहीं आ रहे। इंशाल्लाह बढ़ेगा जी। आपने दो क्वेश्चन किए थे, एक आपने यूजीडीसी का पूछा था कि कितने एमएमसीएफडी है, तो एमएमसीएफडी के अंदर अगर जाते हैं तो रफली 3.10 एमएमसीएफडी के ऊपर है जी, हम लोग उनके साथ कर रहे हैं, और एक्स्ट्रा जितना भी लोड है वो हम लोग एसएनजीपीएल के ऊपर क्योंकि हमारा अप्रूवल है तो हम लोग उनसे ले रहे हैं। और फर्दर ये है, आपने बात की थी कि इनका एक नोटिस आया था जिसमें इनकी एक्सटेंशन हुई थी, बिल्कुल हुई थी, लेकिन उसके बाद इनका वो वापस ले लिया था। एक सेकंड मीटिंग के अंदर एसएनजीपीएल ने वो खत्म कर दिया था। अभी इन्होंने दोबारा अप्लाई किया है कि इनको दोबारा जो है इनहांस कर ली जाए। जैसे ही वो होगी तो फिर डेफिनेटली हम लोग वी आउट देखेंगे कि वेदर इट इज पॉसिबल फॉर अस टू गो फॉर द अनदर एमएमसीएफडी और वी शुड कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस। और जरा प्राइसिंग पे भी बता दें कि क्या प्राइस मिलती है आपको। प्राइसिंग तकरीबन वही है जी जो वहां से हमें मिल रही है, एसएनजीपीएल की इक्विवेलेंट ही है तकरीबन। जो वेटेड एवरेज आपको मिल रही है एलएनजी और सिस्टम की मिला के। जी, ठीक, थैंक यू। जो सिस्टम की और उसकी वेटेड एवरेज है, देखें ये सारे टाइम पीरियड में फ्लक्चुएट करती रही है। आप इसको अज्यूम कर सकते हैं कि 3200 वेटेड एवरेज के करीब चल रहा होगा पर एमएमबीटीयू। चलें नेक्स्ट इकराम सर। हाँ सर। जी वाम सलाम। जी, मुझे आपसे कुछ सवाल करना है। तो बेसिकली आप पहले ये बता रहे हैं कि आपका क्लास और इंडियन वेयर में क्या मार्केट है।
हेलो हेलो, आपकी एक्चुअली आवाज क्लियर नहीं है, आप अपना प्लीज क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। फ्लोर ग्लास और टेबलवेयर में आपका मार्केट शेयर क्या है? रफली जी फ्लोट ग्लास के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 50-50 चल रहा है हमारा और कंपेटिटर के साथ, और अप टू द एक्सटेंट ऑफ द टेबलवेयर साइड वी होल्ड्स रफली 65 to 70% ऑफ द लोकल मार्केट। ठीक है। और आप फ्लोर ग्लास का आगे डिमांड आउटलुक क्या दिख रहा है FY 26 में? ये थोड़ी सी आवाज, सॉरी रिपीट अगेन प्लीज। डिमांड आउटलुक क्या देख रहे हैं आप FY 26 में फ्लोर ग्लास का? देखिए परसीव तो कर रहे हैं कि काफी अरसे से रियल एस्टेट डाउनवर्ड साइड पे है, और अगर कोई भी स्टेबिलिटी आती है तो इंशाल्लाह ये मूव करेगी, क्योंकि अभी तो प्लांट बंद है, हमारा भी एक प्लांट बंद है जो कि 2021 के अंदर और 2 के अंदर सारे प्लांट्स चल रहे थे हमारे भी और कंपेटिटर के भी। अब उनका भी एक बंद है और हमारा भी बंद है। वो फर्नेस को हमने रीबिल्ड करके वो स्टॉप किया हुआ है। जैसे ही डिमांड इंक्रीज होगी तो उसको कैटर करने के लिए हमारे पास कैपेसिटीज ऑलरेडी जो है ना वो अवेलेबल है। जी कैपेसिटीज तो अवेलेबल है, लेकिन आपको लग रहा है कि अगले साल तक कोई डिमांड में FY का आएगा फ्लोर ग्लास की? जी डेफिनेटली इंशाल्लाह। वेरी मच। हाँ जी। आप फ्लोट ग्लास को कंस्ट्रक्शन के साथ कोरिलेट करके इवेल्युएट किया कीजिए। अगर आप स्टील में सीमेंट में मूवमेंट देख रहे हैं तो डेफिनेटली फिर फ्लोट ग्लास विल आल्सो फ्लरिश अकॉर्डिंगली। ठीक है, सही है। और सर मुझे आपसे एक और पूछना था सवाल, लकी टीजी और फ्लोर ग्लास के प्लान का आप दोनों चीजों का बता दें कि ये आपको कब बिगनिंग होती हुई नजर आ रहे हैं? देखिए जी लकी टीचर वही, आप थोड़ा सा अगर इस चीज को देखें कि हमारा एक एक प्लांट ऑलरेडी बंद पड़ा है, तो अगर लकी टीजी के अंदर भी हम 49% के शेयर होल्डर्स हैं, तो डेफिनेटली हम लोग उसको परसीव कर रहे हैं कि फ्यूचर में जब ये प्लांट चलेगा तो हम लोग वो मेजर इन्वेस्टमेंट वाली साइड पे जाएंगे, जो कि एक्सपेक्टेड है कि विद इन नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स उसके ऊपर हम लोग थिंक अबाउट कर सकते हैं जी। नहीं, और इसके साथ साथ वो कंपेटिटर का भी देखा, कंपेटिटर का भी एक प्लांट बंद हाँ है। उनके भी दो हैं, उनका भी एक बंद है और हमारे भी दो हैं, उनमें से एक, दोनों जो है ना मैन्युफैक्चरर 50% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं अभी। तो जब ये इस काबिल हो जाएंगे कि जी ये डिमांड मीट कर देंगे, इसमें कोई ओवर डिमांड आएगी सप्लाई से ज्यादा, फिर कुछ चांस बनता है कि कोई थर्ड पार्टी एंटर हो सकेगी फ्लोट में। ये कैपिटल इंटेंसिव है फ्लोट ग्लास का प्लांट। रफली इस वक्त आज की टाइम पीरियड में अगर इसको करना चाहेंगे तो 35 बिलियन नियर अबाउट हमें वो फंड्स चाहिए होंगे। तो अगर वो 35 बिलियन लगा के तो आपने स्टकअप ही करना है, तो वो आप लोगों के लिए कहीं बेहतर जगह पे उसको हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। But there is no fun. अच्छा, आपके टेबलवेयर के दो प्लान्स हैं? जी दो टेबलवेयर के भी दो, अभी दोनों ऑपरेशनल है या एक ही ऑपरेशनल है? एक ऑपरेशन। तो आपको टेबलवेयर में भी डिमांड देख रहे हैं कि प्लांट रिज्यूम हो सकेगा दोबारा? देखिए जी We hope very much. हाँ जी बिल्कुल। तो अगले साल तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि टेबलवेयर का प्लांट ऑपरेशनल होगा? इंशाल्लाह आप यही परसीव करें कि इंशाल्लाह इसी के नियर अबाउट कंपनी जो है वो परफॉर्म करेगी। ठीक है, सही है। अच्छा, आपके एनुअल रिपोर्ट में हमारे पास दो कैपेसिटीज आती हैं और फिर हमारे पास बेसिकली फुल प्रोडक्शन और पार्ट प्रोडक्शन होता है। तो जी फुल प्रोडक्शन और पार्ट प्रोडक्शन में अगर हमें आपके सेल्स वॉल्यूम अज्यूम करना है तो हम पार्ट अज्यूम करें? जी देखिए जो हमारा पुल और पैक का है तकरीबन आप समझें कि जो हमारी पैक्ड है वही हमारी सेल है, रफ उसी के नियर अबाउट चल रहा होता है, क्योंकि इसके स्टॉक्स जो हैं वो हमारी भी कोशिश होती है कि उसको ज्यादा पाइल अप ना करें, थोड़ा बहुत फर्क आ रहा होता है। ठीक है, Plus minus होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वेलकम। जी अब्दुल मुकीद साहब प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। तरह से कह दें कि अपना वो बंद कर दें। हाँ जी कर। अस्सलाम वालेकुम। जी आप साहब। वालेकुम सलाम। जी सर, जो आपने गैस पे चीज़ें बताई, अब मुझे इसमें एक क्लैरिटी बस ये दे दें। आपने मेंशन किया कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए आप लोग गैस की यूजेज भी कंसिडर करते हैं गिवन द फैक्ट कि वापडा से इंटरप्शन होती है। तो उस गैस की जो यूजेज है, तो उस गैस के उसका क्या रेट आपको चार्ज हो रहा होता है? फर्स्ट क्वेश्चन ये है। एंड सेकंड इज, वो जो गैस आपकी प्रोसेस में यूज होती है जिसमें आप यूजीडीसी से 3.1 MMBTU लेते हैं,
तो वो कितने % ऑफ योर टोटल रिक्वायरमेंट होता है, यानी कि अदर देन 3.1 आपको SNGPL से कितनी रिक्वायरमेंट होती है, और दोनों का रेट भी बता दें, UGDC का भी और SNGP का भी। अभी बताया तो है जी, गुजारिश की है, वेटेड एवरेज लग रहा होता है वेटेड अराउंड 3300 के करीब होता है जी। और वो जो पावर वाला रेट चार्ज हाँ, होता है गैस उसमें पे, आप देखें कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए ना वो अलहदा से कैप्टिव पावर गैस मिलती है कैप्टिव के लिए, वो अलहदा एक कनेक्शन है, उसी के अगेंस्ट सप्लाई होती है। तो उसी से अगर वो कैप्टिव के लिए SNGPL हमें सप्लाई देगा तो हम उसे कर सकेंगे, अगर वो कैप्टिव के लिए सप्लाई नहीं दे रहा तो उससे फिर पावर जनरेशन नहीं हो सकती। तो फिर हम अदर जो सोर्सेज हैं जैसे वापडा है, फर्नेस ऑयल है, डीजल है, सोलर है, इनको फिर हम यूटिलाइज करते हैं फॉर जनरेशन ऑफ पावर। ओके। एंड सर, एट करंट लेवल ऑफ प्राइसेस अगर हम गैस की देखें तो उस पर लेवी लगी हुई है, FO पे जाहिर है वो एक ड्यूटी लगी हुई है, डीजल भी महंगा ही होता है, एंड फोर्थ इज वापडा। तो एट करंट लेवल्स और करंट प्राइसेस सबसे ज्यादा वायबल आपके लिए ऑप्शन क्या है? सोलर। जी, सोलर से तो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, तो आफ्टर सोलर से सोलर। नहीं है, फिर हम लोग गैस पे मूव करते हैं, क्योंकि गैस के ऊपर लेवी के ऊपर अभी बहुत सारे आपको भी, और अभी उसके साथ परसीव करते हुए वही चीजें चल रही हैं, और जहां तक हमारे पास वापडा का हो सकता है हम लोग उसको भी यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, ओके। सर ये जी, फिर कैप्टिव गैस का क्या रेट अनस मिल साहब, जाता है आपको? अनस साहब प्लीज, अनस साहब आप प्लीज। थैंक यू सर। ये जो टेबलवेयर और फ्लोट का जो जब प्लांट जब भी ऑन होता है, तो लेट्स से आपकी 10% 15% डिमांड इंक्रीज हो जाती है, तो वो नए वाले प्लांट का तो मतलब 5-10% ही बनेगा। तो इसमें फिर इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ जाती हैं, या फिर आप एक सर्टेन लेवल का वेट करते हैं कि मैं एटलीस्ट दूसरी वाली लाइन को 15-20% पे चलाऊं तब जाके मैं ऐड करूं, या फिर आपको 10-15% में यहाँ से डिमांड अगर ऊपर मिलेगी तो आप लोग दूसरी लाइन खोल देंगे? अना साहब, ये 100% कैपेसिटी पे चलाना पड़ता है जी, गिलास का फर्नेस। इसको 5% 10% के हिसाब से नहीं चला सकते। इसमें सबसे बड़ी मुश्किल ही यही है। उसमें मतलब 85% तक चलेगा, आप एज्यूम कर लेंगे जी कि वो डिमांड होगी तो वो चलेगा। तो उसमें है कि जी कि एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी अवेलेबल होता है। अब एक्सपोर्ट तो हम इसलिए नहीं कर रहे कि जी कि वो थोड़ी सी कंपेटिटिव नहीं आती, वो वायबल नहीं है। लेकिन है कि अगर वो एक्सेसिव प्रोडक्शन होगी तो डेफिनेटली फिर जो हम एक्सेसिव प्रोडक्शन है वो एक्सपोर्ट कर देंगे, वो चाहे तो ब्रेक फिर इवन पे करनी पड़े। और सेकेंडली मैं फिर हमारे पास स्टॉक लेवल पाइल अप हम लोग करके एक सर्टेन लेवल रख रहे होते हैं, और उसको फिर मंथली बेसिस पे हम लोग एनालाइज भी कर रहे होते हैं। जब स्टॉक लेवल एक सर्टेन लेवल से ज्यादा डिप्लीट करना शुरू करते हैं तो फिर हमें आइडिया हो जाता है कि मार्केट जो है वो पिक कर रही है या नहीं पिक कर रही। मेक सेंस सर, लेकिन फिर इसमें मतलब कम से कम टाइम तो लगेगा कि तब मतलब 25-30% ब्रॉड बेस्ड अगर डिमांड इंक्रीज हो गई तो तब जाके आप लोग कंसिडर करेंगे, क्योंकि फिर वो स्टॉप स्टार्ट वाला तो फिर सीन और ज्यादा फाइनेंशियली अनफीजिबल होगा। ऐसा ही है? जी बिल्कुल सही। बिल्कुल ऐसे ही। बेहतरीन, थैंक यू जी। वेलकम जी। जी, कोई सरबत साहब आप प्लीज। जी जी सर, आपने जो बताया था गैस फिर आप इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज करते हैं कैप्टिव के तौर पे, तो वो उस पे आपको क्या रेट पड़ता सर 3500 के नियर अबाउट है विदाउट लेवी। है विदाउट लेवी? अच्छा, तो वो जी 700 रुपए की तकरीबन लेवी होगी, तो 4200 पे जी चला जाएगा। जी बिल्कुल। और सर जो प्रोडक्शन में गैस इस्तेमाल होती है, जो आपने बताया था तकरीबन 3.1 MCF तक आपको उधर से लाइन जी, मिली हुई है यूजी से। उसका एवरेज आउट करें तो आप समझें कि अब हमें एवरेज आउट करने से 31 32 3200 के नियर अबाउट वो पड़ रही होती है, 32 से 33 के दरमियान। तो और इसके अंदर ड्यूटी शामिल है? देखिए जनरल इंडस्ट्री के ऊपर वो लेवी नहीं लगी हुई, वो कैप्टिव के ऊपर लगी है ना, उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने कि वापडा के ऊपर लोड आए, उन्होंने कैप्टिव के ऊपर वो लगाई है ना लेवी। जी जी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। वेलकम जी। जी सामने वालेकुम। जवान साहब। जी अच्छा, मुझे सॉरी एक चीज़ बताइएगा, ये सेल मिक्स बताते हैं कि प्लीज़ कि कितना प्रोपोर्शनेट सेल्स जो है वो फ्लोट को होल्ड करती है और कितना प्रोपोर्शनेट टेबल वेयर है इसमें रेवेन्यू में? अराउंड 70-30 कह रहे हैं आप।
70 फ्लोट है, 30 टेबल वेयर है, ठीक हो गया। और सर मुझे बताते हैं जो पावर मिक्स के अंदर कुछ एक जेनेरिक सभी ने डिस्कशन कर ली, पावर जो आपका मिक्स है टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है, कितने मेगावाट रिक्वायरमेंट है? 10 मेगावाट की। टोटल 10 मेगावाट चाहिए, डन हो गया सर। तो सर इसमें कुछ रफली मुझे प्रोपोर्शनेट बता सकते हैं कि मेजर कितना पोर्शन सोलर से कितना पोर्शन किससे आता है, को थोड़ा सा मेजरली बता दें। सब 3.5 सोलर से आ रहा है। ठीक है। उसके बाद फर्नेस ऑयल की 12.5 मेगावाट की कैपेसिटी है हमारे पास। उससे कितना अभी कंट्रीब्यूट हो रहा है? 12.5 तो टोटल उसकी होगी ना, मेगावाट कैपेसिटी हो गई, तो कितना उसमें से कंट्रीब्यूट कितना हो जाता होगा इसमें? सोलर सबसे कितना? पहले उसकी फिजिबिलिटी देख लेते हैं। नहीं बिजली नहीं, मुझे मुझे बेसिस के सिर्फ ऊपर देख रहे होते हैं फर्नेस ऑयल महंगा है या सस्ता है, हमने ठीक है। उसको चलाना भी है या नहीं चलाना। मैं समझ गया। मैं सर एक वैसे जेनेरिकली एक ऑर्डर पूछना चाह रहा हूँ कि सोलर जो है उसमें कितना 20% 25% कितना पार्ट है 100% में से, या 10% है? थोड़ा सा ऐसे एलेबोरेट कर देते हैं मुझे प्लीज कि अराउंड सोलर। जी। 22% कह रहे हैं आप। 20 22%। 22% सोलर है, और सेकंड गैस पे कितनी है रिलायंस? देखिए, वही वही आपको वकार साहब ये बता रहे हैं कि हमारे पास जो इसकी कैपेसिटीज हैं वो 15 मोर देन 15 मेगावाट की हैं, ठीक है। हम फाइन। लोग हाँ हाँ। सुने, हम लोग उनको बैठ के हर रेट चेंज के ऊपर एनालाइज कर रहे ठीक होते हैं, ठीक है ठीक है। ठीक हम है लोग ठीक है। डाइवर्ट कर रहे होते हैं। मैं समझ गया, देखिए, यानी हम कि लोग सोलर। पिछले हाँ एक टाइम पीरियड के ऊपर हम लोगों ने अपना पावर जनरेशन जो है वो सारी फर्नेस ऑयल पे कर दी थी, ठीक है। लेकिन जब फर्नेस ठीक ऑयल के है। ऊपर लेवी लगी है तो फिर हमने उसको दोबारा मूव किया है गैस के ऊपर। तो मैं ये समझ गया। वेरिएशन चल रही होती है। मैं समझ गया, यानी कि इसमें जो आपका सोलर है अराउंड 22% कंट्रीब्यूट करता है, अदर देन कॉस्ट प्रायोरिटी बेसिस पे आप उसको मूव ऑन करते रहते हैं, पर फिर भी सोलर के बाद आपका इंटरनल गैस पे रिलायंस होती है, ग्रिड आपकी फाइनल ऑप्शन होती है, ऐसे सर? जी, बिल्कुल ऐसे सही। ही ऐसे ही। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो रेवेन्यू में सर इंक्रीज है, ये वॉल्यूमेट्रिक इंक्रीज है या उसमें प्राइस की वजह से इंक्रीज है? इसमें दोनों इम्पैक्ट हैं। अच्छा, दोनों इम्पैक्ट शामिल है। ठीक हो गया जी सर। तो उसमें आ, उसमें ठीक है, डन। और टोटल सर आपने बताया कि 5 प्लांट है टोटल। जी। ठीक है, जिनमें से रनिंग पोजीशन में कितने हैं अभी जो प्रोडक्शन में है? दो। 2 प्लांट, और ये 2 फ्लोट ग्लास के ही हैं या? एक फ्लोट ग्लास का है और एक टेबल वेयर का है। ठीक है, एक फ्लोट का और एक वो चल रहा है, 2। ये टोटल चल रहे हैं 5 में से, अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंगली जो फर्दर आपने जो उसको रीबिल्ड किया है वो दोबारा इनिशिएट हो जाएंगे। जी बिल्कुल। और जो आपका लकी कोर के साथ था वो ऑन होल्ड चला गया अनटिल अनलेस जब तक एग्जिस्टिंग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं होती, नए प्रोजेक्ट पे अभी फर्दर कैपिटलाइज नहीं आप करेंगे उसे। डिमांड नहीं इंक्रीज होती। डिमांड इंक्रीज नहीं होती, देन उसमें करेंगे। ठीक है सर, उसमें ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम जी। जी, अनस साहब। थैंक यू जी। सर ये फ्यूल एंड पावर पे एक और क्वेश्चन था। आप लोगों के जो बाकी जो कंपेरेटर्स वगैरह हैं वो भी सेम बोट में ही है ना? मतलब ये जो भी फ्लोट में सेम कॉस्ट बोर्ड ऑफ के पे। प्रेशर होते हैं वो आगे पास ऑन ही हो जाते हैं ना? जी। बेहतरीन। और बस ये जो आप लोगों की वर्किंग कैपिटल साइकिल है, एक तो इन्वेंट्री का आप लोगों को कैरी करना पड़ता है, दूसरा आप लोगों के डेटर डेज मतलब आपको आई थिंक अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी एडवांस में और वो देना पड़ता है। तो ये जरा सा जो कंपेरेटिव लैंडस्केप है अभी इसको जरा समझाएंगे कि आप लोगों को अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को ज्यादा मार्जिन देना पड़ रहा है या ज्यादा क्रेडिट देना पड़ रहा है? वो जो आपका मेन जो कंपेटिटर है वो किस तरह से कर रहा है? अभी मार्केट में डायनामिक क्या है? आप लोग एक दूसरे का मतलब एक स्टेटस को बन गया है, आप लोग एक दूसरे को मतलब अपने डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू ज्यादा अग्रेसिवली मार्केट शेयर लेना चाह रहे हैं? अभी कंपटीशन का आप और आपके मेन प्लेयर में क्या एग्जैक्टली सीन चल रहा है? सर उसके अंदर ये है, देखें, जब मार्केट की डिमांड डिक्रीज हो रही होती है तो फिर दोनों प्लेयर जो भी मार्केट के अंदर चल रहा होता है, जस्ट लाइक इन फ्लोट ग्लास एज वेल एज इन टेबल वेयर, तो जब आप फर्नेस को फुल कैपेसिटी पे चला रहे होते हैं तो आपकी कोशिश यही होती है कि आप अपना ज्यादा से ज्यादा मार्केट के अंदर लेके जाएं। अच्छा, जब आप ये मूव कर रहे होते हैं और डिमांड डिक्रीज हो रही होती है तो फिर आपको क्रेडिट डेज भी बाजुकात आपको बढ़ाने पड़ते हैं और आपको डिस्काउंट्स भी पास ऑन करने पड़ते हैं। तो ये सारी टेक्निक्स और टैक्टिक्स हम भी प्ले कर रहे हैं, हमारे कंपेटिटर भी कर रहे हैं, और ये उस वक्त तक होता रहेगा जब तक कि मार्केट थोड़ी सी अपनी पोजीशन को स्टेबलाइज नहीं करती। मेक सेंस जी। और ये जो हमारा टेबल वेयर वाली जो साइड है जिसमें से भी 30% रेवेन्यू आ रहा है,
इसमें हमें कोई इंटरेस्टिंग इनोवेशन, कोई नया प्रोडक्ट वगैरह, जहाँ तक मुझे पता है, आई थिंक टोयो नासिक तो आपका ब्रांड है जो बचपन से सब लोग यूज कर रहे हैं, तो उसी पे ही हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो जो हमारा टेबल वेयर होता है उसमें कंटेनर, मतलब वहां पे हमें कुछ दिख रहा है कि कुछ हम लोग ग्रोथ वहां से ला सकें, या फिर वो फ्लोट में आपको लग रहा है कि पहले वो कंस्ट्रक्शन की ग्रोथ आएगी और टेबल वेयर बहुत कंपेरेटिव है, लेकिन आप लोग इंटरनली फ्लोट ग्लास को पहले खुलते हुए एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या ये टेबल वेयर वाली आप लोगों की जो लाइन बंद हुई हुई है? हम दोनों की तरफ पूरी अटेंशन दोनों साइड पे होती है जी। अच्छा, और ये भी मतलब इसमें भी, लेकिन मतलब भी लगेगा टाइम, लेकिन इसमें कोई ऐसा कोई नया प्रोडक्ट या उस तरह का कुछ भी नहीं है? मतलब आई वुड इमेजिन कि टेबल ज्यादा जनरली कंपेरेटिव नए मार्केट होगी। प्रोडक्ट से क्या मुराद लेंगे आप? देखिए ब्रांड नेम जो है ना, आपको वो नजर आ रहा होगा, टोयोनासिक, जी। होमरॉक, नोवा। हम्म। अच्छा, एक एक ब्रांड नेम के अंदर अगर आप डिप डाउन करेंगे तो आपको नजर आएगा कि मोर देन 500 प्रोडक्ट्स हैं। पूरी अच्छा, ब्रांड अम्ब्रेलाज हैं ये ब्रांड के अम्ब्रेला के अंडर मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड हो रहे होते हैं अप टू द मार्केट रिक्वायरमेंट। हम लोग वो कंटिन्यूअसली डेवलपमेंट कर रहे हैं और नए नए प्रोडक्ट्स, नए नए डिजाइन वो कंटिन्यूअसली हर महीने 10 15 20 नए डिजाइन मार्केट के अंदर लॉन्च कर रहे होते हैं। उसके बाद वेदर का इम्पैक्ट आ रहा होता है, वेदर के हिसाब से हम लोग वो सारी चीज डेवलपमेंट कर रहे हैं। मैं बजाय इसके समझ कि गया। मल्टीपल ब्रांड्स आप बनाते जाएं, और उससे ज्यादा बेहतर है कि एक ब्रांड में रहते हुए उसके अम्ब्रेला के अंदर हमारी डिजाइन और रेंज बढ़ती जा रही है। समझ गया मैं। और इस क्वालिटी में लोकल कोई प्लेयर टेबल वेयर और इन सारी चीजों में आप लोगों के साथ है? आप लोगों का मेन कंपटीशन क्या होता है? इम्पोर्टेड वो टेबल वेयर वालों से आपका कंपटीशन होता है? मतलब मेन आप लोग टेबल वेयर में compete किससे करते हैं? देखिए टेबल वेयर में देखिए ऑर्गेनाइज्ड बेसिस के ऊपर अगर आप देखेंगे तो वहां पे गनी क्लास भी है, गंज क्लास भी है, और उसके बाद अगर आप प्राइवेट कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे जो अनलिस्टेड हैं, तो वहां पे गंज ग्लास आ जाता है, दिल्ली ग्लास आ जाता है, स्फायर आ जाता है, शफक लैंप वाले आ जाते हैं, और इस किस्म के बहुत सारे और भी छोटे प्लेयर्स हैं जो चल रहे हैं, मोहम्मदी ग्लास और मल्टीपल हैं अनस्ट्रक्चर्ड सेक्टर के अंदर। तो मैं समझ जाऊँ। और ये जो छोटे प्लेयर्स हैं ये सरवाइव कर पा रहे हैं, ये और ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, ये बाकी जो छोटे छोटे प्लेयर्स हैं इनकी क्या पोजीशन चल रही है मार्केट में? देखिए आप एप्पल टू एप्पल तो कंपेयर कर सकते हैं, अगर इनकी फाइनेंशियल्स हमारे सामने हो तो हम डेफिनेटली वो कर सकते हैं चीजों को, लेकिन ये छोटी फर्नेसेस के साथ रीजनल प्लेयर के तौर पे compete कर रहे होते हैं, और वहां पे अज्यूम यही किया जा रहा होता है कि ये लॉ अबाइडिंग जिस तरह सिटीजन होते हैं, तो ये कॉर्पोरेट एंटिटीज नहीं होती। तो उस वजह से ये टफ टाइम हमें दे सकती है किसी ना किसी हद तक रीजनल, अपने रीजन के अंदर, क्योंकि इनकी कैपेसिटीज बहुत कम है ना। 30 उसकी टन्स की है, 35 टन की कैपेसिटी आप अगर कोई लगाते हैं तो वो पूरे पाकिस्तान को तो फीड ही नहीं कर सकते हैं। मैं समझ गया हूँ आपकी बात। तो क्या कहते हैं फिर, लेकिन होता ये है कि इनके पास क्योंकि टैक्स की आर्बिट्राज है, तो ये अपने एरियाज में तो अपनी मतलब वो मार्केट बना के ही रखते हैं, वो उसमें वो बड़े अग्रेसिवली कम्पीट करते हैं। जी, तो लेकिन हम लोग अज्यूम ये कर रहे हैं कि जिस तरह डिजिटलाइजेशन चल रही है, तो फ्यूचर इन लोगों के लिए ज्यादा टाइट होगा, क्योंकि अब जिस तरह उन्होंने डिजिटल इनवॉइसिंग को आप सिंक करवा दिया हुआ है एफबीआर के अंदर, तो अगर ये नहीं करेंगे तो ये पकड़े जाएंगे या इनको ठीक होना पड़ेगा। और ये ग्राउंड में कोई अभी फर्स्ट हैंड इंडिकेशंस आई हैं कि लोग मतलब अपना वो किबला सही कर रहे हैं, या मतलब क्योंकि रेजिस्ट तो करेंगे ही करें ना, क्योंकि अगर बिजनेस आपका फंडामेंटल बना ही टैक्स आर्बिट्राज पे, तो फिर आप रेजिस्ट तो पूरी जान से ही करोगे। तो आप लोगों को कुछ ग्राउंड पे दिख रहा है कि एक्चुअली लोगों की आदतें चेंज हो रही हैं? देखें इतनी जल्दी नहीं होंगी, लेकिन वो जो कर रहे हैं ना सर, जो उन्होंने एक्सटेंड कर रहे हैं टाइम को, थोड़ा सा एक्सटेंड किया, उसके ऊपर बहुत सारी इंडस्ट्री मूव भी हो रही है। जो 70 साल की आदतें पड़ी हुई एकदम तो से। स्टेप बाय स्टेप। नहीं, बात तो सही है, टाइम तो जी लगेगा। थैंक यू जी, जी, दैट्स ऑल फ्रॉम मी, थैंक यू सो मच। जी इकरा साहब, हेलो। इकरा, आपने अगर कुछ पूछना है? जी सर, मैंने पूछना है आपका एक्सपोर्ट और लोकल सेल्स के हवाले से पूछना था कि जैसे अगर एग्जांपल ले रहे हैं, फ्लोट ग्लास आपके 100 टन आप बेच रहे हैं, तो उसमें एक्सपोर्ट का कितना होगा मार्जिन और उसका कितना होगा लोकल सेल्स का?
लेकिन ये इसी तरह आप टेबल वेयर का मैं बता रही हूँ। जी मैं आपको बता देता हूँ। देखें, पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तानी जो यूटिलिटीज प्राइस है इसके अंदर बैठ के अगर आप अपने रीजनल पार्टनर को compete करना चाहते हैं तो वो ग्लास इंडस्ट्री के अंदर नहीं कर सकते। आप ये समझें कि एक्सपोर्ट में हम लोग सिर्फ उस वक्त जा रहे होते हैं जब हमने अपनी फर्नेस को अपने पास पैसे को होल्ड करना है। उससे कहीं ज्यादा बेहतर होगा कि उस कैश को आप एक सर्कल के अंदर, इकोनॉमिक सर्कल के अंदर लेके आना होता है। तो एक्सपोर्ट साइड जितनी भी है वो ग्लास इंडस्ट्री के अंदर हमें बेनिफिट नहीं दे रही होती। बाजू का बहुत नॉमिनल मार्जिन के ऊपर हम लोग काम कर रहे होते हैं और कई दफा ऐसा भी होता है कि हम अपने फंड्स रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए बाज़ औक़ात उसको ब्रेक इवन पॉइंट पे भी वहां पे लिक्विडेट कर रहे होते हैं, एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें इतने ज्यादा मार्जिन्स नहीं होते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। Any other verbal question? Then otherwise we will go for the chat box questions. अच्छा सॉरी चलो। सर, एक चीज बस मैं जस्ट मेक श्योर करना, आपने बताया जो कैपेसिटिव जो है उसके लिए गैस एसएनजीपी से लेते हैं उसमें 3500 टू 4200 पर एमबीटीयू चार्ज होता है जो कैपेसिटिव के लिए। कैप्टिव के लिए। ठीक है, डन। और जो प्रोसेसिंग के लिए वो 32 टू 3300 पर एमबीटीयू है, वो प्रोसेसिंग के लिए ये चार्ज होता है। जी। चलो, थैंक यू, थैंक यू। चलिए चैट बॉक्स में शुरू से वसीम साहब का क्वेश्चन शुरू से रहे। आप इधर सामने नहीं आ सकते? नहीं, उधर अच्छा। वसीम साहब का एक सवाल है, कुड यू प्लीज शेयर द गैस रिक्वायरमेंट पर टन फॉर ईच। मेरे ख्याल है इसका जवाब हम काफी दफा देंगे। Can you provide a breakup of the fuel and power cost? हाउ मच इज attributable to gas, electricity? सर ये इसमें कोई वीकली बेसिस के ऊपर चेंज हो रहा होता है जी। जो लास्ट ईयर में 35%। 35 टू 40% हाँ, वेरी कर रहा होता है हमारा। सैयद मुर्तजा हसन साहब ने है जी, कैन यू प्लीज शेयर द गैस एंड एफओ मिक्स इन फ्यूल एंड ग्रेड एंड फर्नेस ऑयल इन पावर। व्हाट्स द यूनिट रेट you are getting? What's the gas rate you are getting? Given the recent levy going forward, will you rely on furnace oil? No. Can you please share TGL's market share in float and tableware? that is 50%. 50% and 70%. Can you please share float glass price trends? And is there any seasonality in it going forward? What's your demand outlook? Currently declining. हाँ जी। डिक्लाइनिंग है, लेकिन अब सीजन स्टार्ट हो रहा है इनका। सितंबर से मार्च तक या फरवरी एंड तक इनका सीजन होता है, तो डेफिनेटली सीजन के अंदर हमारी भी होती है कि मार्केट में जो फंड्स स्टक होते हैं उसको ज्यादा से ज्यादा हम लोग रिकवर करें बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई मैटर। देखिए वो कंस्ट्रक्शन का ना एक पैटर्न है। अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने देखे हैं कि इसे रिलेट करते हैं। कंस्ट्रक्शन का पैटर्न है कि जैसे वो अगर सपोज आज सीमेंट और स्टील लग रहा है तो वो ये जरूरी नहीं है कि जी कि वो एकदम फिनिशिंग पे आ जाएगा। ग्लास जो है वो फिनिशिंग प्रोडक्ट है। ये एट द एंड ऑफ द कंस्ट्रक्शन जब बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है फिर फ्लोर ग्लास हो जाता है जी हाँ। घर को, फिर उसके बाद ग्लास लगता है। हाँ जी, तो अगर वो इसमें सीमेंट में थोड़ा सा अगर राइज आ रहा है तो ये नहीं है कि एक्सपोनेंशियली फौरी तौर पे फ्लोट में भी राइज देखने को मिलेगा। वो डाउन दी पीरियड कुछ 3-4 मंथ्स के बाद जो है ना आप उसको एनालाइज कर सकते हैं फ्लोट के अंदर। जी, एक नेक्स्ट है जी, शाह रोज साहब ने पूछा है, हाउ मच इज द टोटल पावर रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी एंड इज द कंपनी resolve to increase solar share of power mix? Also, how sustainable are the margins? 10 megawatts already पावर रिक्वायरमेंट ऑलरेडी बता दिए जी। सोलर शेयर बड़ी कोशिश है जी, ख्वाहिश भी है कि और बड़े। अब जगह ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे पैनल्स लगेंगे जी। नायाब नादिर साहब, व्हाट इज द करंट एनर्जी मिक्स? ऑलरेडी बताया जी, काफी डिटेल्ड गुफ्तगू हुई। What is the current
furnace oil rate? What is the LNG rate from SNGPL? What is the LNG rate from UGDC? 3300 इसका weighted average है जी दोनों का. What is the soda ash rate? Around 90,000 per ton के हिसाब से. What is the average cost per unit? ये मुश्किल, सबसे मुश्किल सवाल ही यही है, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट वाला. आप 40 के करीब रख लें जी इसको, बट ये पर यूनिट है, पर टन नहीं है, पर यूनिट है ना, यूनिट प्राइस. यूनिट आपकी एक सौसर भी एक यूनिट, वो भी है ना, 4 भी एक यूनिट है आपका. 1500 ग्राम का एक जार है, उसकी दोनों का डिफरेंट हो जाता है. जमीन आसमान का फर्क है. करीम पंजानी साहब ने पूछा है, व्हाट इज योर वॉल्यूमेट्रिक मिक्स इन फ्लोट एंड टेबलवेयर? What is expected demand growth in each segment for float and tableware? What is the gas mix and rate from UGDC and RLNG? मेरा ख्याल है जी आपने 70-30 का मिक्स है जो उसमें सेल्स वॉल्यूम में रेवेन्यू में आप दें तो देखा. बाकी यूजीडीसी और उसका वो 3300 वगैरह वो अभी जैसे सारा एक्सप्लेन किया है. नायाब नादिर साहब, दिल्ली JW glassware, how much affected tableware sales, and if they start flat glass, how much will it affect your production margins going forward, considering they have tax-free status? How much affected tableware sales? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जितनी सेल थी पूरी हो रही है जी. वॉल्यूमेट्रिकली हमें कोई उसके फर्क नहीं पड़ा. फ्लैट ग्लास में भी आ जाएं, दे आर वेलकम, ओपन फील्ड है. लेकिन उन्होंने भी जेन में रखा हुआ है, उनको पता है कि एक तारिक ग्लास के एक प्लांट बंद पड़ा हुआ है और एक गनी ग्लास का बंद पड़ा हुआ है. वो दोनों चल जाएंगे तो फिर उनकी बारी आती है. चलें जी. मलिक साजिद साहब हैं जी. मार्केट शेयर करंट, future of JB with Lucky, forecast or demand for next year. What's the product with the highest margin? Highest margin किसमें है? फ्लोट प्रोडक्ट पूछ रहे हैं. अच्छा. टेबल वेयर के अंदर है, क्योंकि जितना आप वैल्यू एडिशन वाली साइड पे जाते हैं उतना ही ज्यादा आपके लिए वो बेहतर होता जाता है ना. जितनी हम आप वैल्यू एडिशन वाले जो भी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाएंगे उसकी ज्यादा होती है. फ्लोट में भी वो 2 mm से लेके 12 mm तक है थिकनेस. फिर उसमें कलर्ड है, तो वो जितनी वैल्यू एडिशन होगी उस प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा होती जाती है. Rabia Yusuf Saiba, how much power requirement are met through solar? What is the effective capacity of the solar plant going forward? What's the demand as well as pricing? ये तो हम लोग ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं. Wasim Saab, what is your outlook of financial year 26 in terms of volumes and revenue growth? इंशाल्लाह मिनिमम जो करंट है ये तो मीट करेंगे, इससे ज्यादा कोशिश करेंगे. पूरी कोशिश है कि इससे बेहतर हो. नेक्स्ट जी. उमैर साहब हैं जी. गिवन द इंट्रोडक्शन ऑफ द कार्बन लेवी एंड पेट्रोलियम लेवी, व्हाट इज योर एनर्जी मिक्स? इसका भी डिटेल इस पे डिस्कशन हो चुकी है जी. जुनेद खान साहब पे हैं जी. Could you please share the sales volume for financial year 25 along with the contribution breakdown between float glass and tableware glass? ये अब नोट नंबर 30 है हमारा एनुअल जो रिपोर्ट है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. उसमें आप नोट नंबर 30 में देखेंगे ना, उसमें हमारा टेबल वेयर फ्लोट की सेग्रीगेशन, जो मेन हेड्स हैं उनको एक्सपोर्ट वाइज भी और लोकल सेल्स में भी सारा उसको वहाँ पे बड़ा क्लियरली डिफाइन किया हुआ है. तो आप प्लीज उसको देख लीजिए, वहां से आपको सारा मिल जाएगी इंफॉर्मेशन. सबसे ज्यादा सवाल जवाब ये डिस्कशन हुई है एनर्जी मिक्स के ऊपर हुई है. मार्केट शेयर बोथ फ्लोट एंड टेबलवेयर,
50-50 टेबल फ्लोट ग्लास का 70-30 रफली टेबलवेयर का है जी। नेक्स्ट जी, आदिल साहब ने पूछा कैन यू प्लीज कमेंट टेबलवेयर एंड फ्लोट ग्लास डिमांड। ऑलरेडी हमने बता दिया ना। हाँ जी। Cement sale are up with while September at 3.4 million metric tons local. How come it's not showing at all in your business? देखिए इंशाल्लाह 7 से हाँ। 8 माह लगेंगे घर मुकम्मल होने में, उसके बाद फिर हमारा प्रोडक्ट लगेगा जी। अगर सीमेंट सेक्टर के अंदर अगर आपकी ग्रोथ आ रही है 10%, तो हमारे बिजनेस के अंदर रफली 4 to 5% ग्रोथ होगी। वजह ये होती है कि जितने गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो रहा होता है उसमें भी सीमेंट यूज हो रहा होता है, लेकिन वहां पे ग्लास यूज नहीं हो सकता। तो जो रेजिडेंशियल रियल एस्टेट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट सीमेंट की जा रही होती है उसका इम्पैक्ट यहाँ पे आके ग्लास इंडस्ट्री और स्टील इंडस्ट्री के अंदर मूव हो रहा है। अदरवाइज तो सीमेंट आप देखें जितने ब्रिज बन रहे हैं या वो डैम्स हो रहे होते हैं, तो वहां पे भी तो सारी सीमेंट की कंजम्पशन चल रही होती है। तो डायरेक्टली रिलेट नहीं होता, लेकिन प्रोपोर्शनेटली आप किसी ना किसी हद तक कर सकते हैं रिलेट। Can you please share the per ton price of 5 mm, 3 mm floor glass? तो ऑलरेडी मार्केट के अंदर है ना। हाँ जी। Do you have or expect additional corporate contracts for glass bottles? जी। डेफिनेटली। Any update of BGL? यासिर साहब ने पूछे जी। इंशाल्लाह उसको रिवाइव कर रहे हाँ हैं जी। हम। और इस 11 बजे जो उनकी मीटिंग थी तो उसके अंदर भी बताया था कि इंशाल्लाह रिवाइव होगा और सून हम लोग उस प्लांट को भी चला देंगे। लेकिन वो सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी गैस प्रेशर और अवेलेबिलिटी ऑफ गैस, ये चीजें हैं। उसमें बहरहाल कोशिश जारी है कंपनी की। अगर वो स्ट्रीमलाइन होती है तो डेफिनेटली किक स्टार्ट करेंगे यूनिट को। वैसे साहब का सवाल है जी, सैलरी कॉस्ट एज परसेंटेज ऑफ टोटल COGS is more than 50%. So do company has any automation plan or what are industry efficiency standards and where do you stand? देखिए जी, COGS के साथ अगर सैलरी है तो जिस तरह आपकी ये जो मिनिमम वेज रेट इंक्रीज हो रहा है, तो हमें भी बाकी इंडस्ट्री की तरह उसको कंप्लायंस करनी है। और दूसरा ये है कि हमारा रॉ मटेरियल आपको पता है कि सैंड है और डोलोमाइट सारा मिनरल्स हैं। या तो हमारा, और दूसरे नंबर पे हमारा इन्वायरमेंट भी उस रोबोटिक इन्वायरमेंट को सपोर्ट नहीं करता। तो अभी तक जितनी भी ग्लास इंडस्ट्री है उसमें यही कल्चर चल रहा है, किसी ना किसी हद तक क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर आके तो आप वहां पे रोबोटिक या वो चीजें कर सकते हैं, लेकिन बैक एंड से अभी सारा मैनुअल और ये चीजें हैं और हम लोग उसी पैटर्न पे इसको चला रहे हैं। अगर कोई एडवांसमेंट दुनिया में किसी स्टेप के ऊपर आती है तो हम वो मशीनरी के अंदर या किसी भी और लेवल पे है तो उसको हम लोग वो कर रहे होते हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। मोहिउद्दीन साहब ने पूछा है, जैद मोहिउद्दीन साहब, व्हाट्स द करंट ग्रेड यूनिट रेट? 38 है जी यूनिट रेट, 38 39 के ऊपर वेरी कर रहा है। व्हाट्स द करंट सोडा एश प्राइस? Around 90,000. 90,000 roughly. How much soda ash per ton on average is needed to produce 1 ton of full or pack production? सर 1 टन के लिए हमें रफली आप समझें कि 1250, क्योंकि 25 से 27% जो है ना वो वेस्टेज आ रही होती है। और अगर आप बैच मिक्स करते हैं, आप 1300 1.3 टन का आप बैच मिक्स करते हैं, तो फिर आप 1 टन जो है वो ग्लास पुल कर रहे होते हैं। तो बैच मिक्स में उसकी ब्रिटलनेस, ग्लास क्वालिटी, कलर, इनको सब चीज़ों को ज़हन में रख के हम लोग सोडा ऐश को डाल रहे होते हैं।
जो कि डेली या हर 2-3 दिन के बाद उसकी वेरिएशन आ रही होती है। और नॉर्मली आप समझें कि ये एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी मिकदार काफी कम होती है, लेकिन अमाउंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे रॉ मटेरियल का तो रफली 50 से 60% होता है। क्योंकि जब ये सिलिका सैंड आती है तो हर ट्रक का लैब एनालिसिस किया जाता है, उसके अंदर कितना आयरन फैक्टर है, कितना उसके अंदर सॉइल फैक्टर है, और ये सारी चीजें उस पर डिटरमिन की जाती हैं, और फिर उस बैच के मुताबिक जो है ना वो रेसिपी बनती है। बिल्कुल। हाँ जी, मतलब जितना आयरन कंपोनेंट होगा तो फिर इस तरह सोडा ऐश एडजस्ट हो जाएगा, डोलोमाइट एडजस्ट हो जाएगा, लाइमस्टोन एडजस्ट हो जाएगा, या कोई और केमिकल्स ऐड करने पड़ते हैं। 5 से 15% के दरमियान तकरीबन क्वांटिटी वेरी कर रही होती है रेसिपी के हिसाब से। मेरे ख्याल में या एवरी 6 to 8 आवर्स के बाद ये उसके अंदर वेरिएशन लानी पड़ती है। फिर क्या टेम्परेचर चल रहे हैं, एयर की क्या क्वालिटी चल रही है फर्नेस के ऊपर, ये बहुत हाई टेक फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लास। जी, तलहा गनात्रा साहब ने पूछे जी, कंपनी जनरेटिंग PKR 5 to 6 billion free cash flow annually and no major capex planned. Any plan of buying back of stock? ये डायरेक्टर्स को बोर्ड को आपका सवाल रख देंगे जी, उनसे जो भी जवाब मिलेगा इंशाल्लाह आपको बता देंगे। वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू कमेंट ऑन दिस। In your presentation, you said declining trend in dividends is mainly due to conserve capital. असद इमरान साहब का सवाल है जी। नहीं, हमने एक्चुअली अगर डिविडेंड नहीं है तो उसी को हमने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जितने भी लोन्स थे उसको पे ऑफ किया है, ताकि कंपनी का फाइनेंशियल बर्डन रिड्यूस होगा और डेफिनेटली ये कन्वर्ट होगा नेक्स्ट ईयर की प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर। तो आप शेयर होल्डर्स का राइट है, तो डेफिनेटली वो अपनी जब शेयर होल्डर्स बैठ के मीटिंग में जो भी डिसाइड करेंगे और इंशाल्लाह बेहतर होगा। इंटरिम डिविडेंड्स ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हुए हैं, और फिर हो सकता है कि मैनेजमेंट डेफिनेटली वो कंटिन्यूअसली देख रहे होते हैं, इस चीज की स्ट्राइव के कोशिश में होते हैं कि कोई भी बेहतर अपॉर्चुनिटी या ऑप्शन अगर उनको मिले तो वो उसको भी कंसीडर कर रहे होते हैं। सैयद शबी साहब ने पूछा जी, एनी प्लान ऑफ वेंचरिंग इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स लाइक सिरेमिक्स? बिल्कुल प्लान में हैं जी, इंशाल्लाह, लेट्स सी। Almost PKR 10 billion are stuck in trade debts and inventory, even with only one plant being functional. What are the company's plan to reduce this? इसमें तो ये है कि देखिए, हमारा कोई प्लांट टेक्सटाइल की तरह नहीं है या किसी और इंडस्ट्री की तरह नहीं है कि आप जब आपके पास स्टॉक लेवल पाइल अप कर दें तो आप इसको बंद करते हैं। ये तो फर्नेस है, आपने चला ली है, अपनी लाइफ इसने पूरी करनी है, लेकिन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि स्टॉक को हम लोग बेच दें। और इसी वजह से आपको जिस तरह बात हो रही थी कि अगर मार्केट में वो डाउनवर्ड मूव कर रही है तभी तो वो कंपटीशन चल रहा है, प्राइसेस रिड्यूस भी हो रही हैं, डिस्काउंट भी देने पड़ रहे हैं, लेकिन हमारी और उनका जो नंबर ऑफ डेज हैं डेटर्स के वो भी इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन कोशिश यही है, अगर आप उसको देखें कि ये जो इसके अंदर आपको अमाउंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कुछ नजर आ रहा होगा तो शायद वो इन्फ्लेशन का इफेक्ट आपको नजर आ रहा हो मेनली। और लेकिन अगर क्वांटिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हम पिछले साल के इक्विवेलेंट ही हैं, हमने जितना बनाया है हम अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने उसको सेल आउट किया है। तो ये जो आपको इंक्रीज का इन अमाउंट और मॉनेटरी टर्म में नजर आ रहा है, ये इन्फ्लेशन का इफेक्ट है। What is the current sand price per ton? ये तकरीबन जो आती है और प्रोसेस हो रही होती है तकरीबन सेल प्राइस तो कम है, लेकिन उसका जो आने का फ्रेट है वो अपनी प्राइस से कहीं ज्यादा है, तो रफली हमें 6,000 रुपीज पर टन जो है उसकी प्राइस पड़ रही होती है। Couple of years ago, ये असद इमरान साहब ने पूछे, it was discussed in one of the CBS that there was a rising trend to shift to glass bottles and containers instead of PET bottles in light of health
related issues with plastic use. What's the update about the trend? सर देखिए वेस्ट में तो सारा हो गया, बड़ी तेजी से उन्होंने कर लिया। वी होप कि यहाँ पे भी पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह जल्दी शुरू हो जाएगा इसका। और इसमें मैं आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देता हूँ कि जो बेवरेज इंडस्ट्री है जैसे कोक पेप्सी वगैरह ये हैं, इनके मार्जिन्स भी ग्लास बॉटल्स में ज्यादा हैं क्योंकि ये रीफिल हो जाती है। कोई ऑलमोस्ट 20 टाइम्स उनकी है मेरे ख्याल में पेप्सी वालों की सर कि उनकी बॉटल 20 टाइम्स जो है ना, एक बॉटल वो रीफिल होती है, तो उसमें उनके जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो ग्लास बॉटल के अंदर ज्यादा हैं, वो उसको प्रेफर करते हैं। पेट बॉटल में उनके मार्जिन्स बहुत कम है एज कंपेयर टू ग्लास बॉटल्स। अब्दुल मुकीस साहब है, पैक प्रोडक्शन बोथ फाइनेंशियल 24 and 25 वर वो ऑलरेडी 183 182 टन्स है और दूसरे में इसके नियर अबाउट की जो है वो पिछले साल में है ना। ग्रोथ पूछे, क्या है, हाउ मेनी टन्स है? हाउ मच ग्रोथ आर यू सीइंग प्रोडक्शन? देखिए फर्नेस कैपेसिटी हमारी है कि वो अपनी पूरी कैपेसिटी के ऊपर चल रही है और ऑप्टिमम लेवल पे हम लोग मूव कर रहे हैं। या फिर फर्नेस से एक और स्टार्ट करें। दैट्स इट। हाँ जी, मेरा ख्याल है कि तमाम अहबाब और पार्टिसिपेंट्स के क्वेश्चंस आंसर हो गए हैं। अगर कोई स्टिल अभी कोई क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ तो वो वर्बली पूछ लें, अदरवाइज फिर 183,000 टन्स। चलो जी, मेरे ख्याल में दैट्स इट। देखिए आपका क्वेश्चन है कि हम फिर बीजीएल को क्यों करेंगे। देखें बीजीएल का प्राइमरीली पर्सपेक्टिव है कि आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर मूव करेंगे, जो कि टेबल वेयर के अंदर तारे ग्लास के अंदर बैठ के हम लोग नहीं कर रहे। तो वो इसलिए उस प्लांट को हम लोग अगर हम लोग लोन जो है वो रिन्यू करना चाह रहे हैं कि वहां से हम फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर मूव कर सकते हैं। फिर वो एट द सी पोर्ट है और वहां से एक्सपोर्ट का भी काफी ज्यादा वहां पे हमें एक बेनिफिट हो सकता है। नहीं, और जैसे हमने रेंज की भी बात की सर कि हमारी रेंज कोई 500 आइटम्स से ज्यादा है, मतलब ग्रोसरी की या जो टेबल के ऊपर है, प्लेट्स हैं, कप्स हैं, सॉसर्स हैं, कुछ नाश्ता सेट्स हैं, टम्बलर्स के हैं, गॉबलेट्स हैं, जग्स हैं, तो इसके अंदर वैरायटी इतनी ज्यादा है कि वो उसको किसी और सेगमेंट के ऊपर भी फोकस किया जा सकता है। तारे ग्लास किसी और सेगमेंट में फोकस कर ले तो ये तो बहुत, इसमें कोई मतलब मैनेजमेंट को कोई ऐसी परेशानी नहीं है कि जी कोई बहुत कोई हैवी कंपटीशन आ जाएगा या क्या हो जाएगा। वो डिफरेंट सेगमेंट्स को जो है ना वो एड्रेस कर लिया जाएगा विद डिफरेंट प्रोडक्ट रेंज। चलिए, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच असद साहब के जी रिमार्क्स। जी, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।